نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی نصیباور حاضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، اور انگنت درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین اکرام، آج پورا ہندوستان یوم آزادی منا رہا ہے۔ اس یوم آزادی کی مناسبت سے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وطن سے محبت کرنا یہ فطری چیز ہے۔ وطن سے محبت ہونا یہ فطری شے ہے۔ ہر انسان جس ملک میں رہتا ہے فطری طور پر اس سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ کسی بھی انسان سے وطن سے محبت کی سرٹیفکیٹ طلب کرنا یا دلیل طلب کرنا یہ بیکار کی بات ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی محبت کو شریعت اسلامیہ نے بھی منع نہیں کیا ہے، بلکہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کے والدین ابھی غیر مسلم ہیں تو ایسے والدین سے بھی شریعت اسلامیہ محبت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے کے بعد مدینہ تشریف لے گئیں۔ ان کی والدہ مدینہ پہنچتی ہیں،
अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो ज़ातुन नताक़ैन के नाम से मशहूर हैं और जिन्होंने हिजरत की रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोशे को, अपने नाड़े को 2 टुकड़े करके बांधा था, एक टुकड़े से बांध दिया था। अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया था कि मेरी माँ मदीना मुझसे मिलने के लिए आई हैं, लेकिन वो अभी मुशर्रफ इस्लाम नहीं हुई हैं, इस्लाम में दाखिल नहीं हुई हैं, वही रागिबतुन, इस्लाम से बरगश्ता हैं। अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि क्या मैं उनके साथ हुस्न सलूक करूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, दुनियावी मामलात में उनके साथ नेकी का मामला करो, बेहतरी का मामला करो, उनके साथ बेहतर सलूक करो, लेकिन ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। ये कायदा और ये उसूल तुम्हें याद होने चाहिए कि अगर वो तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी का हुक्म दें तो इस सूरत में तुम्हें उनकी बात नहीं माननी है। गोया कि वतन से मोहब्बत ये फितरी मोहब्बत होती है, और इस मोहब्बत के ताल्लुक से अगर कोई ये कहता है कि ये मोहब्बत गैर शरई है तो ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से आप देखेंगे कि मशहूर सहाबी रसूल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल्ली से मोहब्बत किया करते थे। उनके पास एक बिल्ली थी जिसे हद दर्जा मोहब्बत किया करते थे, जिसके साथ उठते बैठते, बल्कि उसे लेकर के हमेशा घूमा करते थे, और यही वजह है कि उनका नाम अबू हुरैरा पड़ गया, बिल्लियों से मोहब्बत करने की वजह से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाना देखा, उसके बाद भी अबू हुरैरा ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों से मोहब्बत करने से नहीं रोका, बल्कि बाज़ दूसरी रवायतों में है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्लियों के जूठे के बारे में पूछा गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि हिया मिनत तवाफीन अलैकुम, क्यों तो तुम्हारे ऊपर चक्कर लगाती रहती हैं, तुम उनसे कितना बच पाओगे। इसी वजह से अगर वो किसी चीज में मुंह डाल दें, किसी चीज को जूठा कर दें, तो उसे फेंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नापाक नहीं होता। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि शरीयत इस्लामिया हर मोहब्बत को या हर फितरी मोहब्बत को नाजायज नहीं गर्दानती है, बल्कि उसके कुछ उसूल और ज़वाबित मुतय्यन किए हैं। जिस वतन में हम पैदा होते हैं, जहां हमारे रिश्तेदार होते हैं, जहां हमारा मस्कन और मावा होता है, जहां हमारे पड़ोसी होते हैं, उस वतन से लगाव होना यह फिक्री शय है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करते हैं तो हम पाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने दिन मक्का में रहे उतने दिन मक्का से हद दर्जा मोहब्बत करते रहे। जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया और आप गारे हिरा से दरे सहमे खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुंचे तो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको लेकर के कहां पहुंची? अपने चचाजाद अम्मेजाद के पास, वर्का बिन नौफल के पास। वर्का बिन नौफल ने देखते पहचान लिया कि ये तो वही फरिश्ता है जो कि इससे पहले नबियों के पास आया करता था। क्यों? वर्का बिन नौफल एक बड़े यहूदी आलिम थे, साबका आसमानी किताबों का इल्म था उनके पास। उन्होंने जान लिया कि ये नबी बनाए गए हैं। उस मौके से वर्का इब्न नौफल ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि आपकी कौम आपकी तकजीब करेगी, आपके घर वाले, आपके घराने वाले, आपके शहर वाले, आपके मुल्क वाले आपको मारेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको तकलीफ देंगे, आपको अजियत में मुब्तला करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों बातों को सुनने के बाद खामोश रहे, किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही वर्का इब्न नौफल ने बताया कि एक वक्त आएगा कि जबकि बल्कि उन्होंने कहा था कि काश मैं उस वक्त जिंदा रहता जिस वक्त आपके कौम के लोग आपको मक्का से बाहर निकाल देंगे। यह सुनना था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन पूछा, आवा मुखरिजिय्यहुम, क्या हकीकत में ऐसा वक्त आएगा कि वो लोग मुझे मेरे शहर से निकाल देंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
वर्का इब्न नौफल से पूछा था, ये किस बात की दलील है? ये इस बात की दलील है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हद दर्जा मोहब्बत किया करते थे। इमाम सुहैली ने इस हदीस पर, इस वाक़े पर लिखा है कि हाज़ल हदीसु दलीलुन अला मुहब्बतिल वतन, ये इस बात की दलील है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हद दर्जा मोहब्बत किया करते थे। यही नहीं, जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने पर मजबूर हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बाहर जब निकलने लगे तो एक ऊंचे मकाम पे खड़ा होकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को मुखातब किया था और मक्का को मुखातब करते हुए कहा था कि इन अत्यबी के कि तू बहुत ही पाकीज़ा शहर है, वह अहब्बु की इलैया, और मेरे नजदीक सबसे पसंदीदा शहर है। मक्का को मुखातब करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तू दुनिया की सबसे पाकीज़ा और सबसे महबूब शहर है। वलौला अन्ना कौमी अखरजूनी मिनकी मा सकन्तु गैरक, और तुम्हारे कौम के लोग या मेरे कौम के लोग अगर मुझे मक्का से निकलने पर मजबूर नहीं करते तो मैं मक्का को छोड़कर कभी दूसरे शहर को अपना मस्कन और मावा नहीं बनाता। यह इस बात की दलील है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हद दर्जा मोहब्बत किया करते थे। जितने दिन मक्का में रहे, मक्का से मोहब्बत करते रहे। गोया कि इंसान जिस शहर में रहता है, जिस मुल्क में रहता है, जिस गांव में रहता है, उससे उसको फितरी तौर पर मोहब्बत होती है, और यह मोहब्बत मायूब नहीं है और न शरीयत के खिलाफ है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचते हैं तो आपकी क्या हालत होती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं मांगते हैं, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना, ऐ अल्लाह हमारे दिलों में मदीना की मोहब्बत डाल दे। अल्लाह हमारे दिलों में मदीने से मोहब्बत डाल दे, का हुब्बिना लिमक्का, जिस तरह से हम मक्का से मोहब्बत किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में रहने लगे और मदीने से जब कभी सफर के लिए जाते थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत यह होती थी कि जब इज़ा क़दिमा मिन सफरिन वरआ दुरजातिल मदीना औज़अ नाक़तहु व इज़ा काना अला दाब्बतिन हर्रकहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत यह होती थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर से वापस आते और मदीना के बालाई हिस्सों पर आपकी निगाह पड़ती, मदीना के दीवारों को देखते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊंटनी को तेज दौड़ाने लगते। बल्कि तेज दौड़ाने पर इक्तफा नहीं करते, आप दूसरे किसी ऊंटनी के अलावा किसी दूसरे जानवर पर सवार होते तो उसको एड़ लगा दिया करते थे। हाफिज इब्न हजर ने फतहुल बारी में लिखा है कि ये क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों किया करते थे? क्योंकि आपको मदीना से हद दर्जा मोहब्बत थी। मदीने के मोहब्बत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश यह होती थी कि हम जल्दी से जल्दी मदीना पहुंच जाएं। यही नहीं, आप जानते हैं कि इस्लाम में हिजरत को एक बड़ी इबादत करार दिया गया है। अगर कोई शख्स अपने दीन की हिफाजत के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए किसी मकाम को छोड़ करके दूसरे मकाम पे चला जाता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशहूर हदीस में बयान फरमाया है कि इन्नल हिजरता तहदिमु मा कानत क़ब्लहा, कि हिजरत की वजह से इंसान के पिछले तमाम आमाल, तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। यानी अगर आप हिजरत करके किसी दूसरे शहर चले जाते हैं, अपने मुल्क को छोड़ करके दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, अपने गांव को छोड़ करके दूसरे गांव में चले जाते हैं, सिर्फ इस हिजरत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देगा। सही मुस्लिम की रवायत है, अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और आपसे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, उरीदु अन उबाइअका, आपके हाथ पे मैं बात करना चाहता हूं। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ को फैला देते हैं, लेकिन अम्र इब्न आस अपने हाथ को समेट लेते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमाने जाहिलियत में मैंने बहुत सारे गुनाह के काम किए हैं। अम्र इब्न आस कौन है? दाहियतुल अरब, जो अरब का सबसे चालाक और सबसे होशियार इंसान थे और जो सहाबे किराम में जो चुनिंदा
साहब कराम लश्कर जर्नल और कर्नेल हुए हैं, उनमें से एक थे। वो जब इस्लाम लाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम लाने से पहले मैं आपसे कुछ बयात करना चाहता हूँ या कुछ शर्त रखना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मादा तश्तरी, क्या शर्त है? उन्होंने कहा कि अन फरली खतीअती, मैं चाहता हूं कि जमाने जाहिलियत में जितने गुनाह के काम किए हैं, जितनी खताएं की हैं, जितनी लफ्ज़ें मुझसे सरजद हुई हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन तमाम पर अफ़ का कलम फेर दे। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वही हक या अम्र, अम्र अफसोस है तुम पर, क्या तुम्हें मालूम नहीं है इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, कि इस्लाम लाने की वजह से इस्लाम से पहले के तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। हिजरत कर जाने की वजह से हिजरत से पहले जितने भी गुनाह होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन तमाम गुनाहों को खत्म कर देता है। इसी तरह से अगर इंसान हज कर लेता है तो हज से पहले के तमाम गुनाह को अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ कर देता है। अब सवाल पैदा होता है कि हिजरत की वजह से इंसान के जो पिछले गुनाह हैं वो सभी माफ कर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान अपने वतन, जहां वो पैदा होता है, जहां के दरो दीवार से उसे मोहब्बत होती है, जहां पे उसके अकरबा और रिश्तेदार होते हैं, उसको अलविदा कहता है। बहुत ही अजीम चीज को और बहुत ही महबूब चीज को अलविदा कह करके दूसरे मुल्क में जाता है, दूसरे शहर में जाता है, दूसरे गांव में जाता है। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत पर इस अज्र को बयान फरमाया है। हाज़िरीन इकराम, यही नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में रहते हुए मदीना के लिए बहुत सारी दुआएं फरमाई थी, और आपने ये बयान फरमाया था, कुछ लोग आए और मदीना में बीमार हो गए, उन्होंने मदीना के ताल्लुक़ से बहुत ही नाज़ेबा कलमात कहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके से बयान फरमाया था कि ये मदीना जो है कलकीर, भट्टी की तरह से है, जो इसमें ख़राब लोग होंगे मदीना उनको निकाल बाहर करेगा, मदीना शहर जो है उनको निकाल बाहर करेगा। इसी तरह से मदीना के जो खुसूसियात हैं, उन खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये भी है कि मदीना के जितने भी नाके होंगे और जब दज्जाल जाहिर होगा तो तमाम नाकों पर, तमाम गलियों पर फरिश्ते खड़े होंगे और दज्जाल को मदीना में दाखिल होने से रोक रहे होंगे। यह मदीना की खुसूसियत है, यानी दज्जाल दुनिया के तमाम इलाकों का सैर कर लेगा, मक्का और मदीना में कभी दाखिल नहीं हो पाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लिए दुआ फरमाई थी और कहा था कि या अल्लाह, तेरे हबीब, तेरे नबी, तेरे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का के लिए दुआ की थी, मैं उसी तरह से मदीना के लिए दुआ कर रहा हूँ। क्या दुआ कर रहा हूँ? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी साइना व मुद्दिना, ऐ अल्लाह हमारे सा में, हमारे मुद में, हमारे जो भी चीजें हैं, मदीना से वाबस्ता जितनी भी चीजें हैं, उन तमाम चीजों में बरकत अता फरमा। गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो मदीना से भी आपको मोहब्बत हो गई, मदीना के दरो दीवार से आपको मोहब्बत हो गई। ये गोया कि मैं ये बताना चाह रहा था कि इंसान जिस खित्ते में रहता है, जिस इलाके में रहता है, उस इलाके से, उस खित्ते से उसे मोहब्बत हो जाती है, और ये मोहब्बत फितरी होती है, ये मोहब्बत वक्ती नहीं होती है, या ये मोहब्बत अगर कोई ये कहता है कि इस मोहब्बत की कोई दलील पेश करो। अब सवाल पैदा होता है कि क्या इंसान ये कहता है किसी से कि तुम अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हो, उस वालिदैन से मोहब्बत की दलील पेश करो। गोया कि वतन अजीज में बाल शरपसंद अनाजिब के जरिए से मुसलमानों को जो हत्फ तान बनाया जाता है और कहा जाता है कि ये मुसलमान वतन से मोहब्बत नहीं करते, ये फजूल है, अर्ज है, क्योंकि हर इंसान अपने वतन से फितरी तौर पर मोहब्बत करता है। यही वजह है कि जब अंग्रेज वतन अजीज में तशरीफ लाए और ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से कंपनी कायम की बुनियाद रखनी चाहिए, तो उसकी सबसे पहली मुखालफत शाह वलीउल्लाह ने की, और शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह ने, मुहद्दिस दहलवी ने ये वतन के लोगों को मुखातब करते हुए कहा था कि तुम लोग अपाहिज मत बनो, अपने आप को बेकारी में मुब्तला मत करो और विदेशी कंपनियों पर इस तरह से निर्भर मत हो, और कहा था कि इस तरह की कंपनियों को हिंदुस्तान में जगह देने की जरूरत नहीं। फिर आपके साहबजादे शाह अब्दुल अजीज ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। उमूमन लोग ये
मुसलमानों को ताना देते हुए दिखाई देते हैं कि मुसलमानों का वतन की आज़ादी में या जंग आज़ादी में कोई रोल नहीं है, जबकि आप मामला यह है कि अगर वतन की आज़ादी की तारीख आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जितनी भी आज़ादी की तहरीकें उठी हैं, हर तहरीक की नुमाइंदगी और क़यादत मुसलमानों ने की है। आप तहरीक शहीदैन को देखें कि शाह अब्दुल अजीज ने जब अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, उसी के ज़ेर असर तहरीक शहीदैन उठ खड़ी हुई थी। और सानिहा बालाकोट जब पेश आया, जहां पे अपनों की अय्यारी और गद्दारी की वजह से ये तहरीक एक तरह से खत्म हो गई, तो उलमाए सादिकपुर ने इस तहरीक को संभाला और उलमाए सादिकपुर ने इस तहरीक को आगे बढ़ाया। और उनकी कोशिशों का समरा ये रहा कि डब्ल्यू हंटर हों, कि वतन अजीज में पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, सब ने उनकी कुर्बानियों को सराहा है। यहाँ तक कहा है कि अगर उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियों को तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और पूरे वतन और देश के पूरे लोगों की कुर्बानियों को तराजू के दूसरे पल्ले में रख दिया जाए, तो उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियां भारी पड़ेंगी, क्योंकि उन्होंने वतन के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, अपना मालोज़र सब कुछ कुर्बान कर दिया और अपने जान तक की परवाह नहीं की। कहने का मकसद यह है कि हम आज आज़ादी मना रहे हैं। जाहिर सी बात है, यह आज़ादी हर इंसान का फितरी हक है, हर जमात का, हर इंसान का, हर फर्द का यह फितरी हक है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को आज़ाद पैदा किया है, हर इंसान को आज़ाद पैदा किया है। इसी वजह से आज़ाद रहना, आज़ादी के खैरात व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होना हर इंसान का हक है। लेकिन आज हम देखते हैं कि हम आज़ाद तो हैं कहने के लिए, लेकिन अपने ही मुल्क में तरह तरह की चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है, जुल्म सितम का सामना करना पड़ता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि उन चीज़ों पर भी तवज्जो दें, और इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि इस देश में, इस वतन में इज्जत के साथ रहें और इस देश की तामीर व तरक्की में अपना योगदान दें, तो सबसे पहले बुनियादी चीज़ यह है कि अपनी आलो औलाद को तालीम पर तवज्जो दिलानी होगी, तालीम पर फोकस करनी होगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें औलाद अता किया है, यह हमारे हाथों में अमानत है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अन रइयती, हम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से क़यामत के रोज़ उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपनी औलाद को, दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ। और जाहिर सी बात है कि यह हमारे बच्चे मुस्तकबल के रिजाल-ए-कार हैं, मुस्तकबल के मर्द मैदान हैं। जब हम इनको तालीम से आरास्ता करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वतन की तामीर व तरक्की में ये अपना सरगर्म रोल अदा करेंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि जब हम आज़ादी मना रहे हैं तो आज़ादी की कद्र करें, वतन देश के जितने भी असासे हैं उनकी कद्र करें, उनको किसी तरह से डैमेज न करें, इसके जो कवानीन है उसकी पासदारी करें। सड़क पर चल रहे हैं तो सड़क के कवानीन की पासदारी करें और उसको किसी भी तरह से रूल और रेगुलेशन जो हुकूमत ने बनाए हैं और हमारे शरीयत से जाहिर सी बात है वो मुतसादिम नहीं है, तो उनको हम फॉलो करें ताकि हम एक अच्छा नागरिक और अच्छा शहरी बन सकें और इस मुल्क में अमन व शांति का बोलबाला हो। आखिर में दुआ है कि बार अल्लाह तो हमारे वतन अजीज़ को खूब तरक्की नसीब फरमा और हमें इस आज़ादी की कदर करने की तौफीक आरज़ानी फरमा। बार अल्लाह जब तक जिंदा रख, दीन इस्लाम पे जिंदा रख। बार अल्लाह जब तू हमें वफ़ात दे, ईमान की हालत में वफ़ात दे। बार अल्लाह में से जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कुल्ली अता फरमा। बार अल्लाह दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान मजलूम हैं, मक़हूर हैं, जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे हैं, तो उन्हें इज़्ज़त व सतवत अता फरमा। आमीन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم وأكبر والله أعلم بما